also fit and fine. Okay, I hope all are good. Very good. Now let us begin our class and we shall begin by chanting Omkaram. So please join our hands. Silence, children. Saira ma'am. Saira ma'am. Sairam. Saira ma'am. Saira ma'am. Yes. Saira ma'am. Saira Okay. ma'am. Devna, you not well? Saira ma'am. I have little bit of cold. Okay. Then take some medicine, take rest, and if you feel you can visit a doctor. Okay. Okay. Okay ma'am. Okay. Now, what were we doing? हम क्या कर रहे थे बच्चों? Make a What did we do sentence last from time? you. Ma'am, I have eaten the medicine. What meaning? Okay. Yes, हमने word meaning sentences देखे हैं ant and the grasshopper के. Okay. Now today we'll be seeing the question answers of that lesson. Not many over there. ज़्यादा कुछ नहीं है. बस कुछ ही है. हम उनको कंप्लीट कर लेंगे. Then we'll move on to something new today. मैं कुछ नया आज शुरू करने जा रही हूँ and I will tell you how to do it. Okay? Let us see. First, we will do finish the question answers. Okay. So now I will share my screen. Just give me a minute. Yes. Can you see the screen, children? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Fine. 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 Yes, Okay. ma'am. Now we will see the question answers. Okay. Now, Myra, can you read the first question? Yes, ma'am. Question number 1. How did the grasshopper spend his days? The answer Answer. number 1. The what, ma'am? Yes. Answer. The grasshopper spent his days by singing songs and playing in the warm sunshine. Yes. Correct. How did the grasshopper spend his days? यानी grasshopper अपने दिन कैसे बिताता था? Here's your answer. The grasshopper spent his days by singing songs and playing in the warm sunshine. Yes, grasshopper we all know कोई काम नहीं करता था. वो बहुत लेजी था, बहुत आलसी था. तो वो कैसे अपना टाइम बिताता था? जब गर्मी का मौसम था तो गर्मी में इन द वार्म सनशाइन वो बस गाना बजाना करता रहता था और खेलता था. ओके. हार्डवर्क बिल्कुल नहीं करता था. अपना खाना इकट्ठा बिल्कुल नहीं करता था और वो सिर्फ गाना बजाना करता था और खेलता था मस्ती से झूम के. नेक्स्ट वन. हृदय, कैन यू रीड दिस सेकेंड वन? Yes, ma'am. Question 2. Did the grasshopper find food in winter? Answer 2.
No, the grasshopper did not find food in winter. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Did the grasshopper find food in winter? क्या grasshopper को सर्दी की मौसम जब आई तब उसको क्या खाना मिला था? No, the grasshopper did not find food in winter. यानी उसको सर्दियों में कोई भी खाना कुछ भी खाना नहीं मिला था क्योंकि सब बर्फ से ढक गए थे और कुछ खाने को नहीं मिल रहा था और उसने कुछ गैदर भी नहीं किया था तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला. Next, it is a little bigger one. Okay. Shivi, can you read this? Yes, ma'am. What Yes. did the ant tell the grasshopper when he asked for food? The ant told the grasshopper to go away and request to help him. Refused. Refused to help him as during whole year he was dying and did not sleep for the past winter by bathing and storing food. यस, थोड़ा सा लंबा हो गया है ये, लेकिन मैं आपको पार्ट बाय पार्ट समझा देती हूँ. Okay, What ma'am. did the ant tell the grasshopper when he asked for food? यानी एंट ने ग्रासहॉपर को क्या कहा था जब वो खाना मांग रहा था? रिमेम्बर लास्ट में जब उसको कुछ खाना नहीं मिल रहा था खाने तो वो एंट के पास आया था. डू यू रिमेम्बर? हाँ, तो तब एंट ने क्या कहा था उसको? गो अवे कहा था ना. तो आंसर में क्या है? द एंट टोल्ड द ग्रास हॉपर टू गो अवे एंड इट रिफ्यूज्ड हिम एज ड्यूरिंग होल ईयर he wasted time and did not prepare for harsh winter by gathering or storing food. अब इसको पार्ट बाय पार्ट हम देखते हैं. The ant told the grasshopper to go away. पहले इतना सा देखते हैं. ऐसे ही बच्चों मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ अभी फिर से बोल रही हूँ अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है बोलने में याद करने में तो आप उसको 2-3 आंसर की तरह देखो. 2-3 आंसर को बस एक साथ लिख देना है तो आपका बड़ा आंसर बन जाएगा. अलग अलग करके अलग अलग आंसर की तरह अलग अलग से सोचो उसको और फिर एक साथ लिख देना है. बस 2-3 आंसर को एक साथ लिख देना है बस हो जाएगा. पहले आपने ये यहाँ तक अवे तक किया. द एंट टोल्ड द ग्रास हॉपर टू गो अवे. ओके, यानी एंट ने क्या कहा था ग्रास हॉपर को कि यहाँ से चले जाओ. नाउ द नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हम देखेंगे. एंड इट रिफ्यूज टू हेल्प हिम. ये सेकेंड पार्ट हो गया. पहला पार्ट क्या था? एंड टोल्ड ग्रासहॉपर टू गो अवे यानी जाने के लिए बोल दिया. एंड इट रिफ्यूज टू हेल्प हिम यानी उसको हेल्प करने से भी मना कर दिया एंट ने. तो 2 थिंग्स. पहले तो उसने बोला कि यहाँ से चले जाओ. दूसरी चीज उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हें हेल्प भी नहीं करूंगा. मैम यस. मैम इसको मैम इसको लिखना है. लिखना है. मैं शेयर कर देती हूँ बेटा. हर रोज मैं यही आंसर देती हूँ आप लोगों को. मैं इसको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में तब आराम से लिख लेना. अभी बस इसको देखो सुनो और समझो. अभी लिखने मत बैठ जाना कोई भी. नेक्स्ट. As during the whole year he wasted time. थर्ड पार्ट. क्यों उसने हेल्प करने से मना कर दिया एंट ने? क्योंकि उसने देखा था कि पूरे साल भर ये कोई काम नहीं करता था टाइम बर्बाद करता था. ही वेस्टेड टाइम. होल ईयर ही वेस्टेड टाइम. थर्ड पार्ट हो गया इसका आंसर का. ओके. एंड द फोर्थ पार्ट में क्या है? एंड डिड नॉट प्रिपेयर फॉर हार्श विंटर
by gathering and storing food. पहले तो इसने टाइम वेस्ट किया और दूसरी गलत चीज क्या की इसने कि हार्श विंटर के लिए यानी जो सिवियर जो भयंकर विंटर सर्दी का मौसम आता है उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं लिया, तैयारी नहीं करी इसने, बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं करी। कैसे तैयारी करनी थी? हम अपने घर पे जैसे करते हैं या एंड्स भी कर रहे थे कि गैदर फूड एंड स्टोर फूड, यानी खाना इकट्ठा करना और खाने को स्टोर करके रखना है, क्योंकि बाद में जैसे हम फ्रिज में खाना स्टोर करके रखते हैं वैसे ही एंड अपने वो बिल में जो अपना वो जहाँ पे रहते हैं जमीन पे वहाँ पे खाना इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि बाद में इनको नहीं मिलने वाला है, तो तब वो स्टोर किए किए हुए खाने को खाएंगे। लेकिन ग्रास हॉपर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसने टाइम मैम रहते यस मैम मुझे मैम 2 क्वेश्चन नहीं आया। 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लिख रहे हो, मैं नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी, अब बाद में लिखना। यस, तो इस आंसर के 4 पार्ट्स है, हमने डिस्कस कर दिया अलग अलग से। आपको आई बात समझ में? मैं फिर से एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनो। द एंट टोल्ड द ग्रास हॉपर टू गो अवे, फर्स्ट पार्ट। एंट टोल्ड द ग्रास हॉपर टू गो अवे, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एंड इट रिफ्यूज टू हेल्प हिम, सेकेंड पार्ट। पहले तो उसने जाने को बोला, सेकेंड उसने रिफ्यूज कर दिया हेल्प करने से। थर्ड पार्ट, एज ड्यूरिंग होल ईयर ही वेस्टेड टाइम, क्योंकि ग्रास हॉपर ने पूरे साल भर टाइम वेस्ट किया, थर्ड पार्ट। एंड द फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट है, एंड ही डिड नॉट प्रिपेयर फॉर हार्श विंटर बाय गैदरिंग एंड स्टोरिंग फूड, यानी उसने कोई तैयारी नहीं की विंटर के लिए और खाना भी नहीं इकट्ठा किया और स्टोर किया। तो 4 पार्ट्स हमने सीख लिए। तो आपको अगर डिफिकल्ट लगे तो ऐसे ही बड़े बड़े आंसर्स को छोटे छोटे हिस्सों में आपको तोड़ लेना है और अलग अलग से पढ़ो, लेकिन लिखने के टाइम एक साथ लिख दो, एक के बाद एक, तो आपका बड़ा आंसर हो गया। कितना आसान है ना? आपको समझ में आई ना बच्चों? जितना यस लिखना है यस मैम। यस मैम। अभी अभी इजी है ना? अभी इजी बन गया ना? यस मैम। यस Oh, मैम। very good. यस मैम। Yes. Now next one. If you were asked to store things for, अच्छा मैं क्यों पढ़ रही हूँ, आप लोगों को देना है। ओके आमीश आप पढ़ो, यस आमीश मैम। आप पढ़ो। If you were asked to store things for winter, what would you store? Name any 3 things. यस, अब आंसर पढ़ेंगे हम, पढ़ो पढ़ो। आमीश Yes. आंसर भी पढ़ना है आपको। I will store food, warm clothes for story विंटर, and story books. यस, थैंक यू। तो if you were asked to store things for winter, what would you store? Name any 3 things. यानी क्वेश्चन का क्या मतलब है? अगर आपको ऐसे ही एंड्स की तरह चीजें इकट्ठा करने के लिए बोले विंटर के लिए, जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप क्या क्या स्टोर करोगे? कौन सी 3 चीजें आप स्टोर करोगे? अभी बच्चों देखो मैंने अपने हिसाब से 3 चीजें लिखी है,
अगर आपको कोई दूसरी चीज का भी नाम लिखना है तो ये हटा के आप दूसरी चीज भी बोल सकते हो, लेकिन ओनली थ्री थिंग्स। यहाँ पे देखो ध्यान से, बुक में भी है थ्री थिंग्स, तीन चीजों के नाम बताने हैं। आपको जो सही लगता है आप वो लिख सकते हो। मुझे ये वाला सही लगा इसलिए मैंने ये वाला आंसर दिया। क्या? आई विल स्टोर फूड, वार्म क्लोथ्स फॉर विंटर एंड स्टोरी बुक्स। यानी खाना तो हमें स्टोर करना ही है, जैसे एंड्स ने किया था। खाना खाने में ही ड्रिंक्स भी आ जाएंगे। अगर मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूस या कुछ भी चाहिए इसमें ही आ जाएगा, फूड में। ओके, खाने पीने की चीजें। वार्म क्लोथ्स फॉर विंटर यानी गर्म कपड़े। हम सर्दियों में, सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं ना, जैसे स्वेटर, ग्लव्स, सॉक्स, कैप, स्कार्फ। ओके, ब्लैंकेट, ये सारे गर्म कपड़े मैं स्टोर करना चाहूंगी। एंड स्टोरी बुक्स, ये देखो मुझे स्टोरी बुक्स बहुत पसंद है। ओके, तो मैं क्या करूंगी, जब मैं रात में सोने से पहले क्या करती हूँ, थोड़े से ऐसे ब्लैंकेट ऐसे ओढ़ के थोड़ी देर स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ। तो मुझे ढेर सारी स्टोरी बुक्स चाहिए। ओके, इसीलिए स्टोरी बुक्स भी चाहिए। तो फूड स्टोर करूंगी, वार्म क्लोथ गर्म कपड़े विंटर के लिए, और स्टोरी बुक्स। इसलिए मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने लिखा। आपको जो भी सही मैम लगे आप लिख सकते हो। यस, यस टेल मी। मैम सुनाई नहीं दे रहा मुझे। आंसर नहीं दिख रहा। आई कांट हियर। दृष्टि, कैन यू रीड नंबर 5? Yes, ma'am. प्लीज रीड नंबर 5। Which season do you सीजन। like the which season do you like the best? I like स्प्रिंग। spring season the best. ओके, थैंक यू। ये क्या क्वेश्चन है, विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट, और आंसर है आई लाइक स्प्रिंग सीजन द बेस्ट। ये भी अगेन मेरी चॉइस है, आपको जो सीजन अच्छा लगता है वो लिखो। सीजन यानी मौसम, आपको कौन सा मौसम पसंद है, क्वेश्चन का यही मतलब है। मैंने क्या लिखा, स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु। मुझे वसंत ऋतु सबसे अच्छा लगता मैम है। बिकॉज, क्यों? क्योंकि तब वसंत में ज्यादा गर्मी भी नहीं रहती, ज्यादा ठंडी भी नहीं रहती, और टेम्परेचर बहुत सुंदर रहता है, और सनशाइन यानी सूरज मैम की रोशनी भी अच्छी आती है। यस टेल मी। मैम मैं तो स्प्रिंग सीजन ही लिखूंगी क्योंकि मुझे स्प्रिंग सीजन ही बहुत पसंद है। जो मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद है। ओके, थैंक यू। यस, तो स्प्रिंग सीजन सबसे अच्छा है क्योंकि ज्यादा ठंडी नहीं रहती, ज्यादा गर्मी नहीं रहती। तो और क्या होता है, सारे पेड़ पौधों में क्या होता है, विंटर में सारे पत्तियां झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, वहां पे नए नए सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्तियां आती है। आप ध्यान से देखना। ओके, आसपास आपके बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, आप ठीक से देखना, उनको देखना, नए नए छोटे छोटे रेड रेड कलर की पत्तियां आती है। फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ते जाते हैं वो रेड से ग्रीन कलर बन जाते हैं। ओके, आप देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे डालियां बन जाती है पेड़, सारे पत्ते गिर जाते हैं, लीव्स फॉल, दे फॉल डाउन। बट इन स्प्रिंग सीजन न्यू लीव्स कम आउट। तो मुझे वो भी देखना बहुत पसंद है। ओके, सो स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट फॉर मी। आपको जो भी सीजन अच्छा लगता है आप लिख सकते हो, समर लिख सकते हो, विंटर लिख सकते हो, रेनी सीजन लिख सकते हो, कुछ भी। मैम I ओके, also like spring season. ओके, वेरी गुड। ओके आयुष्मान, अभी ये नंबर 6 आप पढ़ो। Yes, ma'am. Question number 6. What is the moral of the story? Answer 6. The moral of the story is we should be
prepared for adventures and नहीं नहीं, adversities. Sorry. Adversities. adversities, and laziness is an evil thing. Okay, two models we can come out from here. वो क्या होते हैं? मॉरल क्या है स्टोरी का? वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्सिटीज। इसका मतलब क्या है? हमें हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। एडवर्सिटी क्या होता है? बुरा वक्त, जब हमें कुछ नहीं मिलता है या कहीं पे कोई काम करना है वो नहीं होता है या हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं एडवर्सिटीज, यानी बुरा टाइम, बुरा वक्त। तो हमें हर उस बुरे वक्त के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्सिटीज। कैसे? हमें अगर कोई चीजें चाहिए, जैसे कि खाना जो एंड्स ने स्टोर करके रखे थे वो हमें स्टोर करके रखने हैं। कोई चीजें हैं जो आपको बाद में लग सकती है तो आपको स्टोर करके रखना चाहिए। ओके, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्सिटीज। ऐसा नहीं है कि जब आएगा तब देखेंगे, तो फिर आपकी हालत भी ग्रास हॉपर जैसी बन जाएगी, अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वैसा नहीं बनना है हमें। कैसा बनना है? एंड्स की तरह, यानी हर एडवर्सिटीज के लिए हम तैयार है। वी आर रेडी फॉर एनी चैलेंज। And the second one is laziness is an evil thing. यानी लेजीनेस यानी आलसीपन। आलसीपन एक बहुत ही बुरी चीज है। ओके, इवल थिंग मीन्स वेरी बैड थिंग। लेजीनेस, आलसीपन से क्या हुआ था ग्रास हॉपर को? उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। पूरे साल भर वो बस गाना बजाता करता रहा, खेलता रहा, और आलसीपन से उसने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में कौन सफर करा? वो ही ना। तो लेजीनेस से क्या बना? कुछ नहीं बना उसका। इसीलिए हमें लेजीनेस यानी आलसीपन दूर करना चाहिए और ग्रासहॉपर की तरह नहीं बनना चाहिए। ये दो सीख यानी ये दो मॉरल हम सीखते हैं इस स्टोरी से। ओके, आपको समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? मैम, यस। हमें हमें लेजीपन के अलावा हार्ड वर्किंग बनना चाहिए। यस, वेरी गुड। हमें हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, यानी वक्त रहते, टाइम रहते हमें अपना काम कर लेना चाहिए और आगे के लिए भी जो आने वाला है उसके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जैसे कि मैम जब जब आपको क्वेश्चन आंसर्स देती है तब भी आप करते हो, वैसा नहीं। मैम अगला क्या पूछेगी, अगले चैप्टर में क्या कर सकते हैं, अगले दिन क्या कर सकते हैं, उसको आपको थोड़ा सा सोच के आपको आगे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो आप एंड जैसे बन जाओगे। जब आपकी बारी आएगी तो आप पूरे प्रिपेयर्ड रहोगे। ओके, लेकिन अगर आपने लेजीनेस दिखाई, अंतिम आप सुन रहे हो ना, अगर हमने लेजीनेस दिखाई, आलसीपन दिखाए, तो हमें क्या होगा? हमें सजा मिलेगी इसकी। क्या? कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ याद नहीं रख पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ये आपकी बुक में ही है 171। ये आपको करना है। द लेटर विथ नंबर्स, ध्यान से सुनो। द लेटर्स विथ नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स। Pick up the letter under each number and replace the number by writing in the blanks. क्या करना है हमें? ये सेंटेंस बनाना है पूरा वर्ड से। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो नंबर्स है। ए के लिए 3 है, बी के लिए 14, सी के लिए 8, डी के लिए 11, ई के लिए 16, ऐसे करके सारे नंबर्स है। ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए थे, ये नंबर्स के अगेंस्ट में हमें ढूंढ के निकालनी है कौन सा लेटर है। जैसे कि देखो यहाँ पे 24 है ना, फर्स्ट में 24, यहाँ पे कौन सा लेटर है? कौन बताएगा? बताओ मुझे। 24 में कौन लेटर? हाँ, यस, जी। तो हमें ऐसे ही
यहाँ पे वो भरते जाना है लेटर्स, तो हमें मिल जाएगा वर्ड ऐसे ऐसे करके। तो शैल वी डू इट? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. लेट अस डू। द फर्स्ट वन इज 24। 24 का क्या बताया आपने? जी। लेट अस G. राइट, लेट अस G, राइट ma'am. जी। G. ओके, next is 15. Yadvita, tell me what will be 15? What is 15? What letter? R. R, ma'am. R. Ma'am, ma'am. R. R. Ma'am. R. Very good. R. Okay. Now next is 3. 3 कौन सा है? A. 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 अभी अंतिम बताएगी। 23। 23 में कौन सा नंबर है, कौन सा लेटर है? अंतिम बताओ। Ma'am, A. हम्म, A. नहीं है. 23 किधर है? ये 23 इधर S, है। ma'am. हाँ, फिर से 23 है, तो फिर से एस। अभी 21 है। आरव बताओ क्या क्या लेटर होगा यहाँ पे? H, ma'am. एच है ना? 21 का एच है। H. यस। नॉट 10। 10 में ढूंढो कहाँ पर है। देवना, व्हाट विल बी 10? Ma'am, it is grasshopper. हाँ, Memo. ये बहुत स्मार्ट वाला Memo. उसने बता दिया। Memo. हाँ, व्हाट विल बी 17? P. P. पी। P. 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 फिर से 17, तो फिर से पी। अब ये क्या है? 16। E. E. M. E. हम्म, E. ई। और 15। Ma'am, 15 R. आप कैसे कह? आर। R. तो ये मैम क्या ये चांस वर्ड रह बनेगा? गई। ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर। मैम ये चांस रह गई। आप कौन हो? मैम प्रियांशी श्रीवास्तव। अच्छा, द ग्रास हॉपर ईट्स। यहाँ पे क्या होगा? आप ये वाला वर्ड आप बताओ तो। 4। 4 में कौन सा लेटर डब्ल्यू। आएगा? डब्ल्यू। 4 में डब्ल्यू। ओके। फिर 10 में कौन सा आएगा? प्रियांशु बताओ। ओ। हम्म, मैम ओ। ओ। 15 में आर। आर। फिर 7। 7 में कौन सा एम। होगा? एम। एम। सॉरी। मैम 23। एस। 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 यस। तो एस। क्या सेंटेंस बना हमारा? द ग्रास हॉपर ईट वर्म्स। ओके, तो ऐसे करके हमें और 2 3 भी करने हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कैन यू डू इट एंड शो टू मी? Yes, of Yes, course, ma'am. I can show to you. वन ma'am. सेवेंटी Yes, नंबर ma'am. पेज, सुनो ध्यान से, 171 नंबर पेज में जाओगे और ये करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे ग्रुप में। ओके, कैन यू डू इट? Yes, ma'am, I can do it. ओके, वेरी गुड। Yes. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। Ma'am, यस। that activity you show me now, I already did that. ओके, दैट्स वेरी गुड। Thank you, ओके, ma'am. तो
ये हमारा हो गया सिलेबस कंप्लीट। हमने सब कुछ कर लिया। तो अब क्या करना है, आपको कुछ कहना है क्या? हमने यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कर लिया, तो आपको कुछ कहना है क्या? कुछ आपको नहीं मिला है या कुछ ऐसा है तो आप बताना मुझे। ओके, अगर आपके पास है, कुछ भी आपको कहना नहीं है तो मुझे कुछ कहना है। शैल आई से? Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. I am saying very good. I am saying कि आपको यूनिट 6 से पहले 6 से 10 तक पढ़ने हैं क्वेश्चन आंसर्स। आप पढ़ रहे हो ना? पढ़ लिया आपने? Yes, ma'am. अब क्या करूंगी मैं अब से? मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। एक एक दिन हम क्या करेंगे, एक एक दिन मैं आपको बताऊंगी, ये लेसन आप पढ़ के रखना। तो क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, मेक सेंटेंसेस, सब कुछ आपको उस लेसन का या उस पोम का या उस स्टोरी का पढ़ के रखना है। और मैं क्या करूंगी, क्लास में आके आपसे पूछूंगी। ओके, और पूछने से आप बताओगे मुझे ओरली। ओके, ओरली आप मुझे बताओगे। और जो भी ठीक ठाक आंसर देगा उसको 5 पॉइंट्स, 5 5 पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ओके, और 5 5 पॉइंट्स ऐसे मिलते मिलते आपको लिख के रखना है आपके कितने पॉइंट्स हुए। लेकिन ऑनेस्टली, हाँ, साईं बाबा सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको 5 पॉइंट्स मिले और आपने कह दिया मुझे 50 पॉइंट्स मिल गए। नो, तो फिर ये ऑनेस्टली नहीं हुई, ऑनेस्टी नहीं हुई। साईं बाबा सबको देख रहे हैं। और लास्ट में जब हमारा सब लेसन हो जाएगा रिपीट और आपके पॉइंट्स में पूछूंगी, तो सबसे ज्यादा पॉइंट जिसको मिलेगा उसके लिए एक गिफ्ट है। ओके, उसके लिए एक प्राइज है। यस, अब क्या प्राइज है वो मैं बाद में बताऊंगी। ओके, और जैसे जैसे आपके एक एक लेसन होते जाएंगे और आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, जो विनर होगा, जो बहुत अच्छा करेगा, सबसे अच्छा जिसके होंगे और सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिसके मिलेंगे, तो उसके लिए भी पर पर लेसन आपको एक प्राइज मिलेगा। पर लेसन आपको एक प्राइज मिलेगा। ओके, और लास्ट में जाके जिसके प्राइजेस सबसे ज्यादा होंगे, यानी जो ग्रैंड विनर बनेगा, उसके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा उसको। ओके, आर यू रेडी? Yes, ma'am. I'm ready. Ma'am. Yes, ma'am. I also ready. वेरी गुड, गुड चिल्ड्रन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अरे मुझे ना अनाउंसमेंट I'm करनी होता है। also ready. 6 वर्ग 10 वर्ग का फुल सेंटेंस पोएम मेक सेंटेंस। Yes, ma'am. I also ready. My point से कैसे दोगे? मैम किस लिए बोला, बताना किस लिए बोला है इसने? ओके, मैम, यस, आप गिफ्ट कैसे दोगे? वो मेरी चिंता है। आप पढ़ाई की चिंता करो, जो आपकी पार्ट है। देना ना देना मेरी पार्ट है। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको सच में गिफ्ट मिलेगा। ओके, मैं कहानी नहीं बना मैम, रही मैम। हूँ, सच में मिलेगा। मैम, यस, मैम ये तो क्विज जैसा है। हाँ, क्विज जैसा है, लेकिन थोड़े डिफरेंट है। टीम्स नहीं है यहाँ पे, इंडिविजुअल है, यानी एक अकेला व्यक्ति है, टीम नहीं है। ओके, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा प्राइस पाता है और ग्रैंड प्राइज किसको मिलता है। ओके, अभी देखो, हम कुछ नया करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? हम अभी कॉम्पोजिशन पे थोड़ा आएंगे। मैंने बोला था कि जब हमारा सब कुछ हो जाएगा तो हम ग्रामर पार्ट करेंगे। तो अभी से शुरू होता है आपका ग्रामर पार्ट। अब हम क्लास में क्या करेंगे? ग्रामर का पार्ट करेंगे
और एक एक ग्रामर का हम करते जाएंगे और एक एक लेसन का मैं पूछती जाऊंगी, यानी पोएम या स्टोरी का, जो मैंने अभी अभी बोला था। तो वो भी हम करेंगे रिवाइज, और ये ग्रामर वाले पार्ट को हम नया सीखेंगे। ओके, तो एक नया होगा, एक पुराना होगा। आई बात समझ में हम कैसे करने वाले हैं? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? यस। Ma'am, I understood. ओके, Yes, राधा ma'am, I am बल्ला, आप understand. ग्रासहॉपर जैसा क्यों बन रहे हो? उठ के बैठो, और वीडियो कैमरा ऑफ नहीं करना है किसी भी बच्चों को। मैंने ऑफ किया है क्या? आप भी ऑन करो, और सोते सोते नहीं पढ़ना है। राधा बल्ला ग्रासहॉपर मत बनो, उठ के बैठ जाओ ठीक से। हमें लेजीनेस नहीं दिखानी, आलसीपन नहीं दिखानी है। गेट अप। राधा वल्लभ वीडियो ऑन करो, वैष्णवी वीडियो ऑन करो। मैम मेरा वीडियो तो ऑन है। यहाँ पे तो ऑफ दिख रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रामर का हमने कुछ कुछ बीच में किए थे, उसको फिर से रिवाइज करेंगे और नई चीजें भी सीखेंगे। आज मैं आपको क्या बताऊंगी, थोड़ा सा बता रही हूँ, अगले दिन हम इसका करेंगे, और मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी कौन सा पोम आपको प्रिपेयर करना है। अच्छा, लेसन यूनिट 6 में कौन सा था? मिस्टर नोबडी, है ना? Yes, ma'am. हाँ, मिस्टर नोबडी आप पढ़ के यस रखना। मैम। ओके, मिस्टर नोबडी आप प्रिपेयर करके Okay, रखना। ma'am. क्वेश्चन आंसर्स, फिर मेक सेंटेंसेस, डिफिकल्ट वर्ड्स। हाँ, एक और चीज, ये जो न्यू न्यू वर्ड्स है ना, ये न्यू वर्ड्स की स्पेलिंग भी आपको सीखनी है। ऐसा नहीं कि आप स्पेलिंग नहीं सीखोगे, मैं आपको स्पेलिंग भी पूछूंगी बोलने, और आप फ्रेंड के सामने वो मुझे बताना है, देख के नहीं, बिना देखे। ओके, मैंने बोला है ऑनेस्टली करना है, मक्कारी से नहीं चलेगा। आपको स्पेलिंग भी पढ़नी है, फिर वर्ड मीनिंग्स भी जानने हैं, मेक सेंटेंसेस पढ़ने हैं, और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो अगला क्लास कब है आपका? नेक्स्ट क्लास मंडे को हो जाएगा ना आपसे? अच्छे से कर लेना। ओके, मैम क्या करना है? मैम मैम यस। मैम हाँ, I will study hard. yes, we have to be hard working like the ants. And राधा वल्लभ अभी भी ग्रास हॉपर बन रहा है। ओके, ग्रास हॉपर नहीं बनना, हमें एंड्स जैसे बनना है। ओके, हार्ड वर्किंग। ओके, नाउ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं ग्रामर का। अभी सबसे पहले जो हम करेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिशन मतलब ऐसे, ऐसे या कॉम्पोजिशन कुछ भी आप बता सकते हो इसको। हम थोड़ा सा इसके बारे में करेंगे। ओके, यानी वो क्या होता है कॉम्पोजिशन और ऐसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप ध्यान से सुनो। ओके, इसका मतलब होता है कि हम कुछ भी टॉपिक जो मैम दे देगी या आपको बताएगी, उस टॉपिक पे हमें थोड़ा सा बताना है। ओके, हमने पिक्चर कॉम्पोजिशन पहले ही किया है ना? राधा वल्लभ खाओ नहीं, सारे गलत चीजें कर रहे हो आज, बैड बॉय बन रहे हो। ओके, हमने पिक्चर कॉम्पोजिशन पहले किया है ना? वीडियो ऑफ करके खाना नहीं है। ओके, पिक्चर कॉम्पोजिशन में क्या करते हैं, एक पिक्चर रहता है और आप उसके बारे में बताते हो, है ना? अब क्या होगा, ये राइटिंग का कॉम्पोजिशन होगा। यस, yes. राइटिंग का कॉम्पोजिशन, यानी इसमें पिक्चर नहीं रहेगा, इसमें मैं बता दूंगी या आपको लिखाऊंगी, एक टॉपिक है उसके बारे में आपको बतानी है। जैसे कि एक कॉमन टॉपिक है, मैं आपको बाद में कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में करेंगे। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। माई स्कूल, अगर मैंने बोला माई स्कूल, तो उसके बारे में एक एक लाइन सब बच्चे बताओ। अभी मैं एक एक करके पूछती हूँ,
आपके स्कूल के बारे में कुछ भी आपको इंग्लिश में बतानी है। ओके देवना, टेल मी अबाउट योर स्कूल। टेल मी। Our school is best. ओके वेरी गुड, आवर स्कूल इज बेस्ट। Thank you, एक ma'am. पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट मायरा, आप एक पॉइंट बताओ। Yes, ma'am. हाँ भैया, Ma'am, सबको पूछो, our सबकी very बारी beautiful आपकी। and high. हाँ Ma'am, our very beautiful. ओके वेरी गुड, आवर स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके सर्वज्ञा, अभी आप बताओ। सर्वज्ञा बताओ। School is very popular in my locality. हाँ वेरी Very popular in my locality. कौशिक, आप माइक ऑफ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। Yes, ma'am, मैं फिर से सुनाता हूँ। My school is very माई स्कूल इज वेरी, उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा है। My school is very popular in my locality. माई स्कूल इज वेरी, My school is very popular. My school is very popular in my locality. ओ पॉपुलर इन माई लोकेलिटी। ओके, हाँ वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा बताया आपने। माई स्कूल इज वेरी पॉपुलर यानी बहुत फेमस है मेरे लोकेलिटी में। वेरी गुड। हमीश, एक पॉइंट बताओ। आमिश, आई थिंक उसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है। ओके हृदय, आप एक पॉइंट बताओ। Yes, ma'am. कुछ भी बताओ अपने स्कूल के बारे में। Ma yes, ma'am. My school is very best and my school playground is very best. वेरी बिग आप बोल सकते हो। ओके, माई स्कूल इज बेस्ट किसी ने बोल दिया तो आपने बोला माई स्कूल प्लेग्राउंड इज वेरी बिग। ओके वेरी गुड। ओके, अभी अनुज, आप एक पॉइंट बताओ। My school name is Satyasai Vidyavihar Girl Vijaypur. वेरी गुड, सबसे पहले ये पॉइंट आएगा। आपने तो स्कूल का नाम बताया ही नहीं, सबसे पहले ये पॉइंट आएगा अनुज ने जो बताया। ओके, कोई आपसे आपके बारे में पूछे तो क्या बताओगे? माय नेम इज, ये बताओगे ना। तो स्कूल के लिए भी तो वही है, स्कूल का नाम पहले बताना है। आपने प्लेग्राउंड बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, नाम ही तो नहीं बताया। तो सबसे पहले होगा माय स्कूल नेम इज श्री सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर। ओके वेरी गुड। ओके, तो ऐसे ऐसे हम देखो कितने सारे हमें पॉइंट्स मिल गए हैं ना। माय स्कूल नेम इज दिस, माय स्कूल इज बेस्ट, माय स्कूल प्लेग्राउंड इज बिग, इट इज वेरी पॉपुलर इन माय लोकेलिटी, माय स्कूल इज वेरी हाई, वेरी ब्यूटीफुल, कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। तो ऐसे ही हम जब एक टॉपिक पर बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ लिखते हैं, इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। ओके, Ma'am, कॉम्पोजिशन या ऐसे इसको कहते हैं। ओके, तो ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स पे लिखेंगे, करेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को। और मंडे को मैं क्विज भी लूंगी आपके मिस्टर नोबडी पे, और आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। आपको अपने कॉपी में या डायरी पे कहीं पे पॉइंट्स लिख के रखने हैं ताकि हम टोटल कर सकें उसका। ओके, मैम के पास भी रहेगा, ऐसा मत सोचो कि मैम नहीं जानती, लेकिन आपको भी नोट करके रखनी है। ओके, ma'am, यस बेटा। ma'am, I can tell one more point. यस यू कैन टेल। Yes, ma'am. My school is so big Yes, my school is so big. and I like my school so much.
वेरी गुड, ओके। एंड यज्ञता, आपको कोई पॉइंट बतानी है? नो मैम। ओके, ठीक है। यस मैम, यस मैम। मैम कैन बेबी। मैम यस। बोलो। In my school, the playground is very big. ओके, ये तो हृदय ने बता दिया। माय स्कूल प्लेग्राउंड इज वेरी बिग। ओके, Phoebe, डेजी आप भी बताओ। मम्मी। ओके, नेक्स्ट डे वी विल सी। नेक्स्ट डे हम एक टॉपिक पर हम इसके बारे में पूछेंगे और मैं डिस्कस करूंगी। इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। मैंने आपको आइडिया दे दिया किसको कहते हैं कॉम्पोजिशन या ऐसे। तो इसको कहते हैं जब हम एक टॉपिक को लेके इसके बारे में पॉइंट्स लिखते जाते हैं, सेंटेंसेस, उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। ओके, सबको समझ आ गया? हैव यू अंडरस्टूड? Yes ma'am. I have understand. Yes ma'am. तो आज के लिए अपना क्लास इतना तक ही। तो लेट अस एंड टुडेज क्लास विद शांति पाठ। हैप्पी वीकेंड टू यू। अच्छे से प्रिपेयर करना मिस्टर नोबडी, क्योंकि क्विज है मंडे को। ओके, सो जॉइन योर हैंड्स। Ma'am. Shanti, Shanti, Shanti. Bye ma'am. Bye Ma'am, bye ma'am. Bye ma'am. ma'am.